اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑے ڈاکوؤں پر ہاتھ ڈالنا ہی تبدیلی ہے۔ لاہور میں قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب، کہا سابق وزیر اعظم اور ان کا خاندان قبضہ مافیا کی پشت پر کھڑا تھا، اس کے باوجود محل گرتے دیکھا۔ قانون کی حکمرانی کرنے والے ملک ہی ترقی کرتے ہیں۔ چیف منسٹر پنجاب، میں آپ کو آج سب کے سامنے خاص مبارک دینا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ نے یہ بڑے بڑے قبضہ گروپ کے محل گرائے ہیں، جو یہ لعنت ہے قبضہ گروپس کی، غریبوں کی زمینیں قبضہ کرنا، بے بس ہوتے ہیں لوگ ان طاقتور لوگوں کے سامنے۔ میں نے بڑا محل گرتے دیکھا، سب سے بڑا لاہور کا قبضہ گروپ جس کی پشت پہ پچھلا وزیر اعظم اور اس کی فیملی کھڑی تھی، جو ان کے ہوتے ہوئے زمین قبضہ ہو رہی تھی، بلکہ انہوں نے اس کو تحفظ دیا۔ یعنی قبضہ گروپ کو کون بچا رہا تھا؟ وزیر اعظم اور اس کی حکومت۔ لوگ کہتے ہیں نا تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے تبدیلی۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے اوپر ہاتھ پڑے گا، یہ ہے تبدیلی۔ کبھی کسی ملک نے ترقی نہیں کی جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوئی۔ کوئی بڑا ڈاکو یہ نہیں کہہ سکتا میں تمہاری گورنمنٹ گرا دوں گا جب تک مجھے NRO نہیں دو۔ جو ہمارا ملک بنا تھا اسلامی فلاحی ریاست، وہ اس ویژن کی طرف اب جا رہا ہے۔ کرپشن کے جھوٹے نعرے لگانے والے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے خود کرپشن کے بادشاہ نکلے۔ مریم نواز کی وزیر اعظم عمران خان پر تنقید، ٹویٹر پر لکھا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی ہے کہ پاکستان کرپشن کی دلدل میں دھس رہا ہے۔ سچ ہی کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم کرپٹ ہو تو ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہوتی ہے۔ طنز کرتے ہوئے مریم نواز نے لکھا کہ کرپشن بڑھ رہی ہے لیکن بندہ ایماندار ہے۔ کرپشن کے جھوٹے نعرے لگانے والے، دوسروں پر کیچڑ اچھالنے والے خود کرپشن کے بادشاہ نکلے ہیں، مریم نواز کا ایسا کہنا ہے۔ نالائق حکومت کرپٹ ترین بھی بن گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو بدعنوانی کا منہ بولتا ثبوت قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کو رپورٹ پڑھنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ الزام لگایا کہ دوہری شہریت والے وزراء کو NRO دینے کے لیے حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے۔ رپورٹ بڑی واضح ہے کہ 117 نمبر پہ پاکستان تھا، آج 124 پہ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم صاحب کو ان کے سٹاف نے بتایا کہ یہ پرانا ڈیٹا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب خود رپورٹ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا رپورٹ ذرا خود پڑھ لیں۔ یہ 2019-20 کا عمران خان، نیازی اور PTI کی حکومت کا ڈیٹا ہے کہ پاکستان 7 نمبر پیچھے چلا گیا ہے۔ تو عمران خان کی حکومت، جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی نالائق ترین حکومت ہے، آج پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت بھی بن چکی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ایک فریق بن گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر PTI کی پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں براڈ شیٹ سے حکومت پاکستان کا اب کوئی رابطہ نہیں، کوشش ہے کہ براڈ شیٹ جیسے معاملات دوبارہ نہ ہو۔ قومی اسمبلی میں کہا ایسٹ ریکوری یونٹ کے TORs کابینہ سے منظور شدہ ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر نہ تو کسی نجی ایجنسی سے رابطہ کیا، نہ کوئی نیا معاہدہ ہوا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کوئی خود سے ریکوری نہیں کرتا، اسسٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز کو۔ نیب کی 990 ارب روپے کی، FIA کی 6.1 ارب روپے کی، FBR کی 6.2 ارب روپے کی ریکوریز ہیں۔ فورن ایسٹس کی مد میں ریکوریز ہوئی ہیں ابھی تک 37 ارب روپے کی ہیں۔ جو ڈیٹیکشن ہوئی ہے ابھی فورن ایسٹس کی وہ 318 ارب روپے کی ہے۔ براڈ شیٹ کے ساتھ اس وقت کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے کسی بھی ایسٹ ریکوری ایجنسی کو پرائیویٹلی انگیج نہیں کیا ہے۔ ان ہاؤس کیپیسٹی بلڈ کی ہے، انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس کو ہائر کیا گیا ہے آن لوکل سیلریز۔ کوئی بھی نیا ایگریمنٹ اس وقت کسی بھی ساتھ نہیں کیا گیا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ براڈ شیٹ جیسے معاملات دوبارہ نہ ہو سکے۔ قومی اسمبلی میں براڈ شیٹ اسکینڈل پر بلا اجازت بولنے پر اصرار، اسپیکر نے لیگی رہنما احسن اقبال کو جھاڑ پلا دی۔ لاہور میں قبضہ چھڑاؤ آپریشن کو افضل کھوکر نے گھر پر حملہ قرار دے کر تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ حکومت کی جانب سے سخت مخالفت، متوالوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں وہاب کامران۔
قومی اسمبلی کا گرما گرم اجلاس، عدالتی حکم امتناع کے باوجود لاہور انتظامیہ نے گھر پر دھاوا کیوں بولا، متوالے رکن افضل کھوکھر نے تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ یہ کمیٹی میں اپنے ثبوت لے کر آئے، اگر یہ سب ثابت ہو گیا تو جو آپ سزا دیں گے میں اس کو وہاں سے مانوں گا۔ حکومت نے تحریک استحقاق کی مخالفت کر دی، بابر اعوان بولے پارلیمنٹ کسی قبضہ گروپ کو تحفظ فراہم نہیں کرتی۔ یہ سرکاری زمین تھی 45 کنال جس کی قیمت 1.5 بلین روپے ہے پاکستانی، جو قبضے میں تھی اس کو ریٹریو کرایا گیا ہے، کسی پرائیویٹ زمین کو ہاتھ بھی نہیں لگایا حکومت پنجاب نے۔ اسپیکر اسد قیصر نے تحریک پر اپنی رولنگ محفوظ کر لی۔ براڈ شیٹ معاملے پر ضمنی سوال کی اجازت نہ ملنے پر احسن اقبال کا احتجاج، اسپیکر نے جھاڑ پلا دی۔ بپھرے متوالوں نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کر لیا، حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی۔ اور سوال یہ کہ نیب نے کتنے کیس مکمل کیے، ٹرائل کے بعد عدالت میں کتنے پیسے جمع ہوئے، میاں صاحب سے پوچھ لیں، ان کو پتا ہوگا۔ سینٹ کے اجلاس میں نون لیگی رہنما کے سوالوں پر تکرار، جاوید عباسی کو اعظم سواتی نے بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا جنہوں نے گاجر کھائی ہے انہیں تکلیف ہوگی، جاوید عباسی کا نیب کے خلاف بولنا قیامت کی نشانی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ کسی کیس میں لاجیکل اینڈ ہوا ہے؟ زیادہ تر کیسیں تو آپ ہی کی جماعتوں میں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ آپ پرچی سنبھال کے نہیں رکھتے۔ جو کیسز نیب کی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ہیں، لاجیکل اینڈ تک پہنچے، اس میں کتنی ریکوری ہوئی؟ 390 ارب روپے ریکور ہوتے ہیں، اور اس سے پچھلے 8 سال میں جب زرداری صاحب اور نواز صاحب کی حکومتیں تھی تو صرف 91 ارب۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ این آر او مل رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ پلی بارگینیں ہو رہی تھی۔ 50 ارب روپے کی کرپشن کی ہوگی، 5 ارب روپے اس نے دیا ہوگا، باقی اس کی مال چھوڑ دیا ہوگا۔ اور میں کئی افیسرز کے نام لے سکتا ہوں جنہوں نے پلی بارگین کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عباسی صاحب نے یہ صدائے احتجاج رائیونڈ میں ضرور بلند کی ہوگی۔ کسی عدالت میں جب یہ کیس ٹرائل ہونے کے بعد پیسے جمع ہوئے، وہ کتنے پیسے؟ میاں صاحب سے پوچھنے وہ آپ کو بتا دیں گے، میاں صاحب سے پوچھنے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ جاوید عباسی صاحب جیسا آدمی نیب کے خلاف بات کرتا ہے۔ تانے دینا، ایک جھکتے کرنا پارلیمان میں نہیں ہوتا۔ ارے خدا کے بندے، جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں ان کو تکلیف ہوگی، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو نیب پھکی دے دے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مریم اورنگزیب افضل کھوکھر کو لقمے دیتی نظر آئیں، اپنے سکھائے جملے ادا ہونے پر خود ہی داد بھی دیتی رہیں۔ سینئر رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی کو مشورہ دیا کہ حکومت والوں کو بولنے نہ دیں۔ یہ بدماشی کرتے رہے، گنڈا گردی کرتے رہے۔ افضل کھوکھر قومی اسمبلی میں اپنا گھر گرائے جانے کی دہائیاں دے رہے تھے۔ مریم اورنگزیب ان کے پاس بیٹھنے آئیں اور سرگوشی میں لقمہ دیا۔ قبضے والی زمینوں پہ بہنوں کے گھر نہیں بنائے جاتے جناب اسپیکر، جناب اسپیکر، ہم نے بہنوں کے گھر تو نہیں بنائے لیکن ضمانت پارک بنایا گیا۔ لیگی ترجمان نے کچھ دیر بعد پھر ان کو ایک لائن سجھائی۔ آپ کی صفوں میں بہت جو ہے افضل کھوکھر نے ان کا پڑھایا سبق پھر دہرایا تو مریم اورنگزیب نے پہلے کی طرح خوب ڈیسک بجایا۔ میں نے اپنی بہنوں کو سرکاری فنڈ سے مشینیں نہیں لے کے دی۔ مریم اورنگزیب نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار ان کو جملے بتائے، اور تو اور سینئر رہنما کو شرارتی انداز میں مشورہ دیا کہ حکومتی بینچوں سے کسی کو بولنے کا موقع نہ دیں۔ بابر اعوان صاحب آپ بھی بتائیں، اگر اب نون لیگ والے اسپیکر ڈائس کی طرف جانے لگے تو مریم اورنگزیب خود بھی اٹھی اور اپنی ساتھی خواتین کو بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، گویا پارٹی کی ترجمان ہونے کا پورا حق ادا کیا۔ مریم اورنگزیب کی سرگوشیاں کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار لیگی رہنما اپنے ساتھیوں کو کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے سکھاتی نظر آئی، مگر مریم نواز کو سکھانے کی کوشش پر ڈانٹ بھی کھا چکی ہیں۔
क्या समझ रहे हैं मरियम औरंगजेब झूम रही हैं? जी नहीं, ये जलसे में लोगों को झूमना सिखा रही हैं। सिखाना, पढ़ाना, दिखाना, बताना, पार्टी की हर जिम्मेदारी है निभाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कब करनी है यही बताती हैं। क्या है दोहराना ये भी सिखाती हैं। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। कोने में ले जाकर सबक पढ़ाती हैं। समझ ना आए तो बार बार बताती हैं। अपने लीडर को भी सिखाना चाहती हैं, मगर यहाँ डांट पड़ जाती है। यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर ख़रीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को ख़रीदने के लिए। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो ऐसे पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, वो कैसे, अगर कोई पैसे दे के आएगा वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को? उसके अलावा वो जो एमपीज़ पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, ये कौन सी जमहूरियत के अंदर है? ये कौन सी किस किस्म की जमहूरियत है? तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज़ ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह, अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज सेट की, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शन, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और पीटीआई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद इस पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? ये पीडीएम जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देखने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़ निकलती है। वो हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के ख़िलाफ़। इराक़ में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ़ हैं।
लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ़ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफ़ा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ़ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था। और ये आगे भी इनका, ये अपनी पार्टी से इकट्ठा रखते हैं जी, हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में, ताकि इनकी पार्टी इकट्ठी रहे, क्योंकि नज़रिया तो है ही नहीं। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है, और वहाँ बैठ के वो समझ रहा है कि इनकलाब आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, वैसे तो परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट होती है, लेकिन समटाइम्स परसेप्शन जो है वो रियलिटी से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू समझी जाती है। 2 चीज़ें जिसके ऊपर बाकी चीज़ें तो सामने आई, लेकिन एक डेमोक्रेसी और एक जो है वो जो रूल ऑफ लॉ है, उसके ऊपर पॉइंट्स जो है वो कम हुए हैं और पिछले 2 सालों में। तो क्या समझते हैं कि डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट का जो किरदार था वो पूरा अपना, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है उन्होंने पहले दिन से ही जिस तरह का किरदार अदा किया, और साथ रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर पुलिस जो है उसका बड़ा किरदार है, तो ये इनमें पॉइंट्स क्यों कम हुए, क्या समझते हैं आप? पार्लियामेंट चलती कैसे है? पार्लियामेंट के अंदर एक गवर्नमेंट होती है, एक ऑपोजिशन होती है। पार्लियामेंट चलती ऐसे है जब ऑपोजिशन का काम होता है कि मुल्क के मसले मसाइल की निशानदेही करे, और वो गवर्नमेंट को मुसलसल प्रेशर में रखे अवामी मसलों के ऊपर या कानूनी मसलों के ऊपर। लेकिन कभी डेमोक्रेसी ऐसे भी चली है कि ऑपोजिशन इकट्ठी होकर कहे कि हमारी चोरी माफ़ करो, हमें एनआरओ दे दो, नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। और जो इन्होंने किया आपके सबके सामने है कि पहले दिन से शुरू हो गए, कभी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, उसमें हम कहें ठीक हम तैयार बैठे हैं, खोलें इलेक्शन। कभी कहें जी माशी हालात बुरे हैं, वो माइशत के तो ज़िम्मेदार ही हैं, तो वो हमारे से पूछ रहे हैं जी कि ये देखिए कर्ज़े ये चढ़ गए हैं, और हमारे से पूछ रहे हैं और प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दे दें। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल किया, क्योंकि फैटफ के अंदर मुल्क ब्लैक लिस्ट हो सकता था, और ब्लैक लिस्ट का मतलब कि सैंक्शंस लग सकती थी। तो इन्होंने उसके ऊपर फिर हमें ब्लैकमेल करना शुरू, और फिर बाकायदा लिख के दिए कि 34 शिकें चेंज करो 38 में से, यानी नैब को ख़त्म कर दो। तो जमहूरियत तो नहीं चलती ऐसे। जमहूरियत तो अब चोर इकट्ठे हो जाए और कहें जी हमारी चोरी छोड़ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, तो ये तो जमहूरियत नहीं चलती। और इसलिए वो ठीक कह रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की डिबेट और गुफ्तगू होना चाहिए था, जो कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं। मेरा नाम मियां असलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एक्सप्रेस टेलीविजन से हूँ। मैं कुछ नाम आपके सामने दूंगा और उन नामों पे मेरा सवाल बेस करेगा। बैरिस्टर शहजाद अकबर, मुराद सईद, डॉक्टर शहबाज गिल, ये ऐसे नाम हैं जो फ्रंट लाइन पर डिफेंड भी आपको करते हैं और अपोजिशन का भी बड़ी तनकीद का निशाना बनते हैं। कोर्ट में भी इनके हर दूसरे दिन पेशियाँ करते हैं। दूसरी तरफ इन्हें पार्टी के अंदर भी कुछ हमलों का सामना रहता है, मुखालफत होती है। सेम जैसे उस्मान बुज़दार साहब को आप लेके आए हैं, कोविड में इन्होंने जिस तरह काम किया, दूसरे इन्होंने काम किए, वो पता चलता है कि हर तीसरे माह जो है वो कोई 8-10 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के जो है वो चक्कर में है। तो आप इस मैस में कि अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करें? ऑपोजिशन और ख़ास तौर पर इनके जो बड़े बड़े नामवर डाकू जब ये तनकीद किसी की करते हैं तो वो उसका एजाज़ होता है। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ़ करें तो मैं अपनी तौहीन समझूँ, क्योंकि ये इन्होंने 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का खून चूसा हुआ है। तो अगर वो हमारे लोगों की तनकीद करते हैं, फिरदौस की, इसकी, शहबाज की और मुराद सईद की, तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। इसका मतलब ये जहाद कर रहे हैं इन चोरों के ख़िलाफ़। और जहाँ तक अंदर है, बदकिस्मती से ये तो होता ही है पॉलिटिक्स में, अंदर एक पार्टी के अंदर भी कंपटीशन चलती है, क्योंकि ये कोई रेजिमेंटेशन तो नहीं होती है, कोई एक
डिक्टेटरशिप तो नहीं है, तो इसमें तो ये चलता रहता है, इसकी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। पीएम साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद चौधरी है और मेरा ताल्लुक 92 न्यूज़ लाहौर से है। पीएम साहब कहते हैं कि ज़माने भर के जो मोतबर हैं वो खुद लरजते हैं आइनों से, कोई तो इनका हिजाब पलटे मैं इनका रोज़े हिसाब देखूं। आपने इनके हिजाब पलटे हैं, जो कब्ज़ा माफिया था, जो सियासी माफिया था, इतनी उनके ऊपर आपने हाथ डाला। पहले साल हज़ारों एकड़ आपने और सीएम साहब ने ज़बरदस्त कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया और ज़बरदस्त एक्शन लिया, फिर बीच में कुछ खामोशी आ गई। अब आपने फिर से कब्ज़ा माफिया के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हाथ डाला है। लाहौर में खोखर पैलेस हो, दीगर कब्ज़ा माफिया हो, बहुत ज़बरदस्त ऑपरेशन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में दोबारा से फिर से ये कब्ज़ा माफिया जो है चंद माह के बाद दोबारा से फिर एक्टिव हो जाए? इस हवाले से क्या इकदाम करें? पाकिस्तान में जो कब्ज़ा माफिया फैलते गए हैं, बढ़ते गए हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये कब्ज़ा माफिया के पीछे सियासी रहनुमा, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बल्कि पॉलिटिशियंस खुद कब्ज़ा माफिया का हिस्सा बन चुके हैं। वो खुद ज़मीनें कब्ज़ा करते हैं और ये कब्ज़ा माफिया चल सकता ही नहीं है जब तक इनकी पुश्त के ऊपर गवर्नमेंट ना खड़ी हो। खोखर पैलेस गिराया गया और मरीम नवाज़ वहाँ पहुँच के खड़ी हो के उन्होंने बड़ी उसकी हौसला अफजाई की, एक कब्ज़ा माफिया की। इससे क्या चीज़ सामने आती है? इससे नंबर वन चीज़ तो ये सामने आती है कि ये जो इसने मरीम से सवाल पूछना चाहिए था कि पहले ये तो चेक कर लें कि जो इसने ज़मीन इसकी छुड़वाई गई है क्या इसकी वाकई अपनी थी या इसने गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, क्योंकि वो तो सब कुछ कागजात में है। रजिस्ट्री, लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि इसकी ज़मीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। 1.25 अरब रुपए की ज़मीन, यानी 130 करोड़ रुपए की ज़मीन के ऊपर इसने कब्ज़ा किया हुआ था। और वो मुल्क की जो अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती हैं और एक करप्ट आदमी जो कि मुल्क से फ़रार हुआ पैसे चोरी करके, उसकी बेटी उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। इससे क्या साबित होता है कि पहले तो ये सारा जो कब्ज़ा हुआ था वो इनकी गवर्नमेंट के दौरान हुआ था और इन्होंने इसको पूरी प्रोटेक्शन दी इस कब्ज़ा माफिया को। और फिर इस कब्ज़ा माफिया से जो अगला सवाल है कि वो जो इनकी खिदमत करता था वो भी पता चले कि कैसे क्या खिदमत करता था। इसका मतलब कि ये पहले कब्ज़ा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फ़ायदे उठाते हैं। अब अगर तीसरी चीज़ ये कि अगर गवर्नमेंट यानी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो कब्ज़ा ग्रुप के साथ, तो फिर इंतज़ामिया क्या कसूर है? वो फिर क्यों ना अपने कब्ज़ा ग्रुप पाले? फिर पुलिस क्यों ना अपने कब्ज़ा ग्रुप के साथ कनेक्शन रखे और पैसा बनाए, जबकि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना रहा है? तो ये जो कब्ज़ा ग्रुपों ने मुल्क में तबाही मचाई हुई है, शहरों में सबसे ज़्यादा बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो इनकी ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, वो बेचारे मेहनत कश जाके कमाई करके ज़मीन ख़रीदते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा हो जाता है। ये इसलिए होता है कि पीछे इनके ये बड़े बड़े डाकू जो पॉलिटिशियंस हैं ये खड़े होते हैं। तो इंशाअल्लाह पॉलिटिशियंस के पीछे भी किसी बड़े बड़े डाकुओं को हमने नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, और इनके जो नीचे बैठे हुए कब्ज़ा ग्रुप इनको भी हमने किसी को नहीं छोड़ना। मेरा सवाल आपसे मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर होगा। पीडीएम बनी, आपकी हुकूमत के खिलाफ 11 जमातों ने पीडीएम बनाई, मौलाना फजलुर रहमान को उसका सरबराह बनाया। इस्तीफों से बात होती हुई अब फॉरेन फंडिंग तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से नाला होकर मौलाना फजलुर रहमान ने यह स्टेटमेंट दिया कि अगर फैसले मरियम और बिलावल ने करने हैं तो वो पीडीएम के सरबराह क्यों हैं। उसके बाद साथ ही आपने उनके ऊपर फॉरेन फंडिंग और कुछ गैर मुल्की ममालिक से इमदाद के हवाले से, फंडिंग के हवाले से भी केस इलेक्शन कमीशन में डाल दिया। आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान अब पीडीएम के सरबराह रहेंगे? क्या देख रहे हैं कि वो फॉरेन फंडिंग का सामना करेंगे या आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे? फॉरेन फंडिंग का एक ऐसा हुआ कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते सारे खुद फंस गए। जितना भी आप यानी फॉरेन फंडिंग क्या, आप जो अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने ये उठा दिया है। अब हम चाहेंगे कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे। सारी पार्टीज़ की फंडिंग की पूरी स्क्रूटनी की जाए इलेक्शन कमीशन, और जब ये स्क्रूटनी करेंगे, मैं आज आपके सामने पेशन गोई करता हूँ कि एक पार्टी के
सबसे बेहतरीन अकाउंट्स मिलेंगे उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, जिसने बाकायदा पॉलिटिकल फंड रेजिंग किया है, जिसने जिन डोनर्स ने पैसे दिए हैं उनके पता है, एड्रेस। 40,000 हमारे पास डोनर्स के नाम हैं। कोई भी उनको कांटेक्ट करके पूछ सकता है कि वो उन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए। मैं चैलेंज करता हूं कि ये 1,000 नाम दे दें, कोई भी इन पार्टी में से 1,000 क्या 100 नाम दे दें जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए। जैसे ही आप पता चलाएंगे आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज़ ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है, वो भी पता चल जाएगा। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, वो खालिद ख्वाजा की पूरी स्टेटमेंट है, उसने पब्लिकली उसकी बीवी ने स्टेटमेंट दी हुई है। ये जो मौलाना फजल रहमान को किधर से कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। नवाज शरीफ ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है अपनी नून लीग के जो वो पार्टी फंड्स के ज़रिए, वो भी सामने आ जाएगा। मैं तो बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ, और सबसे बड़ा जो इस वक्त मौलाना फजल रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए दीनी मौलाना आलिम की तौहीन है। ये करप्ट आदमी है जो सिर्फ दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालिब इल्मों को इस्तेमाल करता है ब्लैकमेल करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। ये बताया कि इसके पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ आई किधर से हैं। लोग मेहनत करते हैं, कोई बिजनेस करता है, ये बैठे बैठे ही अरबोपति है इसके तो, और फ्रंटमैन के ज़रिए इसके पैसे, बेनामी इसकी जो ज़मीनें हैं किधर से आई हैं, क्योंकि ये सारी हुकूमतों में बैठा रहता है, सबके साथ मिल के, कोई इसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि फतवा लगा देता सब पे। सारे इसको डर के इससे कोई पूछता नहीं है और ये पैसे बनाता रहता है। और ये स्टेटमेंट दे रहा है जी नैब कौन होती है मुझे बुलाने वाली, क्या ये कानून से ऊपर है? ये जो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो आखिर में जो मैं बात करना चाहता हूँ, ये तारीखी जंग चल रही है, कानून की बालादस्ती की जंग चल रही है। ये जो चोर हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून के नीचे नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है, नवाज शरीफ वो कहता है मैं मानता ही नहीं, क्यों निकाला। जो इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन, उसके ऊपर जब अगर इनके अगेंस्ट फैसला फंडिंग में आएगा ये कहें वो नहीं हम मानते। इनके ऊपर जब नैब कोई कुछ कहती है वो नैब को नहीं मानते। तो मानते किसको हैं ये? उसको मानते हैं जो इनके हक में फैसला करे बस। और ये और हक में फैसला करवाते कैसे हैं? जिस तरह इन्होंने वो ब्रीफ केस पहुँचाए थे वो रफ़ीक तारड़ ने जाके जजेस ख़रीदने के लिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सजाद अली शाह के सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था डंडे लेके, ये वो लोग हैं, ये माफिया है। और ये जो अब तारीखी जंग है इंशाल्लाह ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती आएगी। ये बड़े बड़े डाकुओं को हमेशा के लिए ये जंग है, इनका असल ठिकाना जेल में है और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। कामयाब किसान प्रोग्राम के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छा इनिशिएटिव है। एट द सेम टाइमिंग जब सरहद पार दिल्ली में किसानों के साथ इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, मोदी रजीम में बहुत कुछ हमने देखा है और यहाँ पर सब कुछ उल्टा है। किसान आपकी तरफ देख भी रहे हैं, एग्रीकल्चर पैकेज कब तक आएगा और मजीद किसानों के लिए क्या होने जा रहा है? हमारी पूरी कोशिश है कि अब हम एक पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आएँ जो अगले 5 साल 10 साल तक जाए, जो कि हमारा पूरा चेंज कर दे एग्रीकल्चर जो सेक्टर सारा। इसका एक बड़ा पैकेज आ रहा है जो हमने अपनी पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा खड़ा करना है। आपको बताएं कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि ये तारीखी जंग चल रही है, ये कानून की बालादस्ती की जंग है, ये नैब को नहीं मानते तो फिर किसको मानते हैं? ये सिर्फ उसको मानते हैं जो उनके हक में फैसला करे। क्या मौलाना फजल रहमान कानून से ऊपर है? साथ साथ उनका कहना था कि फॉरेन फंडिंग में तहरीक इंसाफ को फंसाते फंसाते खुद फंस गए। हम चाहते हैं कि ये मंतकी अंजाम को पहुंचे, सबकी स्क्रूटनी होगी और सबसे बेहतर रिजल्ट एक ही जमात के होंगे और वो है तहरीक इंसाफ। आसिफ अली जरदारी की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो की निकाह की तकरीब मारूफ इल्मी और दीनी शख्सियत अलहाज मौलाना गुलाम मोहम्मद सोहू ने बख्तावर और महमूद चौधरी का निकाह पढ़ाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, बख्तावर का निकाह हो गया? जी बिल्कुल, बख्तावर भुट्टो जरदारी शादी के बंधन में बंध गए हैं। उनका निकाह मारूफ जो है अलामा अलहाज गुलाम मोहम्मद सोहू साहब ने उनका निकाह पढ़ाया है।
निकाह की तकरीब बिलावल हाउस में हुई। दोनों ख़ानदानों के अफराद ने तकरीब में शिरकत की। काफ़ी पुरवकार ये तकरीब थी, इसको महदूद रखा गया था कोरोना SOPs की वजह से। आप स्क्रीन पर गुज़िश्ता रात रस्म हिना की तस्वीर देख रही होंगी। बख्तावर भुट्टो जरदारी और महमूद चौधरी के करीबी दोस्त जो खसूसी तौर पर बैरून ममालिक से भी पाकिस्तान आए हुए हैं। जो दूल्हे हैं महमूद चौधरी, इनकी पूरी फैमिली दुबई से यहाँ पर आई है। इनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं वो लाहौर से खसूसी तौर पर कराची आए हैं। जो बैंड बाजा ग्रुप है वो भी लाहौर से आया है। तो ये अहम जो तकरीब थी वो अब से कुछ देर कबल बिलावल हाउस में हुई है। निकाह की तकरीब हो गई है। मौलाना गुलाम मोहम्मद सुआ साहब ने उनका निकाह पढ़ाया है और अब बख्तावर भुट्टो जरदारी शादी के बंधन में बाज़ाब्ता तौर पर बन गई हैं। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपने अरकान असेंबली हैं और करीबी जो दोस्त अहबाब हैं उनके लिए एजाज़ में रिसेप्शन वो कल रखा गया है। महमूद चौधरी की फैमिली अब से कुछ देर के बाद यहाँ से रवाना होगी। लेकिन आज बख्तावर भुट्टो शादी के बंधन में बंध गई हैं और कल रिसेप्शन की ये तकरीब रखी गई है। संजय अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने पेट्रोल 12 रुपये और हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। अलबत्ता हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। बिल्कुल, इन कीमतों के हवाले से हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमत एक बार फिर बढ़ाने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने पेट्रोल 12 रुपये और हाई स्पीड डीजल 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। आपको बताएं, पेट्रोल 12 रुपये, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये महंगा करने की ये तजवीज़ है। ओगरा ने नई मुजव्वज़ा कीमतों की समरी हुकूमत को भिजवा दी है, जबकि हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। कराची में बीवी से मारपीट करने वाले शौहर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुलशन इकबाल के वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। बीवी ने शौहर से खुला और बच्चों की हवालगी का केस दायर कर रखा है। चीफ क्राइम रिपोर्टर अमर रहमान खान से मज़ीद जान लेते हैं। अमर, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अब तक? जी देखिए, गुलशन इकबाल ब्लॉक 14 का इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आया है। इस अपार्टमेंट में दूसरी मंजिल पर वाकई इस फ्लैट पर जो अफजल नामी शख्स है वो आया 25 तारीख को और उसने न सिर्फ अपनी अहलिया पर तशद्दुद किया बल्कि दीगर ससुराल वालों को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारी इनके घर वालों से भी बात हुई है, जो खातून है डॉक्टर कुलसूम, उनके घर वालों से, तो वो ये बताते हैं कि जी ये 2006 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद से झगड़े होना जो है वो शुरू हो गए थे। 2 माह कबल खातून की जानिब से खुला का केस भी जो है वो दाखिल कर दिया गया है। इस पर जो है वो जो अफजल नामी शख्स है उसने न सिर्फ खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया है बल्कि जो दीगर रिश्तेदार हैं उनको भी अब इन पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स न्यूज शामिल करते हुए बात करते हैं पाकिस्तान की जीत की। यासिर शाह, रुमान अली के साथ शिकार, फवाद आलम की जिम्मेदाराना बैटिंग। पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। मेहमान टीम ने सिर्फ 88 रन का हदफ दिया था। फवाद आलम मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम ने बतौर कप्तान पहला टेस्ट मैच जीता। कराची से गवादर के लिए रैली रवा दवा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हैवी बाइक्स और गाड़ियों में शहरी रैली में शरीक है। रैली का मकसद दुनिया को अमन का पैगाम देना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शायान सलीम। एक से बढ़कर एक चमचमाती फराटे भरती हैवी बाइक, सफर है तवील, इसलिए तैयारी भी है भरपूर। सारे के सारे साथ एक दूसरे को होल्ड करें, पोजीशन सारे रिस्पॉन्सिबल है, कोई यहाँ बच्चा नहीं है। कराची के इलाके क्लिफ्टन से बलूचिस्तान के लिए रैली चल पड़ी। 50 से जायद हैवी मोटरसाइकिल और कई गाड़ियां रैली का हिस्सा हैं। मकसद पाकिस्तान में सियाहत का फरोग और अमन का पैगाम देना है। तो मैसेज इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रीन इज एब्सोल्युटली पीसफुल। पाकिस्तान हमारा बिल्कुल पीसफुल और खूबसूरत तरीन मुल्क है। वी एज अ नेशन हम बहुत पीसफुल लोग हैं और आप देखें इस तरह अमेरिका में राइड्स होते हैं, इतने लोग इतना बड़ा राइड कर रहे हैं तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा इमेज जाएगा, यही पर्पज़ है इसका। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हैवी बाइक के दिलदादा अफराद रैली में शिरकत कर रहे हैं। 3 चैप्टर्स, 3 डिफरेंट मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान हैव गॉट टुगेदर टू ऑर्गेनाइज दिस और ये हम सब मिल के जाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को
इस पाकिस्तान चैप्टर और इसका इमेज पाकिस्तान का काफ़ी दुनिया में बेहतर होगा। 3 रोज़ा रैली ग्वादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। तो नाजरीन, ब्रांड छोटा हो या बड़ा, कोरोना ने फैशन इंडस्ट्री को घुन लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मलबूसात के आंगर पर पड़ने वाले कोरोना के असरात पर रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। कोरोना वबा ने तेजी से तरक्की करती पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री की रौनकें भी छीन ली। फैशन शोज का सिलसिला तो रुका ही, मलबूसात की खरीदारी भी कम हो गई। डिजाइनर सना नूर ने समा को बताया, बहुत से डिजाइनर्स हालात की वजह से कारोबार बंद भी कर चुके हैं। 30% जो डिज़ाइनर्स हैं उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो जब चीज़ें हमारे लिए ख़राब हुई थी तो लोगों ने अपने काम को वाइंड अप किया। यहाँ से चीज़ों को वाइंड अप करके अंदरून सिंध ले गए, पंजाब की तरफ ले गए। मारूफ डिजाइनर आसिम जोफा कहते हैं, इंडस्ट्री की आमदनी कई गुना कम हुई है। बिजनेस अफेक्ट हुआ है और मेजर अफेक्ट हुआ है, और बड़ी ब्रांड्स को भी हिट आई है, छोटी ब्रांड्स को भी हिट आई है। फैशन इंडस्ट्री के मौजूदा हालात अपनी जगह, मगर डिजाइनर्स कहते हैं अब अच्छा वक्त ज्यादा दूर नहीं। कोरोना वायरस के असरात इंडस्ट्री पर तबाहकुन हैं, मगर पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री एक बार फिर अपनी चमक दमक से दुनिया की आंखें खीरा करने को तैयार है, और इस सिलसिले में दिन रात काम हो रहा है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।